it's in like right now. I'll say it's 56. Okay. But it's It's yeah, it's Dallas weather, you never know. I do not know. Houston maybe is a little bit more consistent, but Dallas has like within the same yeah, day you can have multiple seasons. correct. Yes, yes. In Houston, the definition of winter is little different. Anything below 70 is cold for Called a us. winter. Okay. Yes. We Okay. wear jackets. Below Mhm. You have to go and look for your jackets. You don't know where you kept them. I know. That's what, like, yeah, but yeah, Yeah. anything below 70, like it's today, it will be, it's a sunny though, but it's super windy. I just checked. Yeah. Same. Yeah. Same here. So are you regular for this meeting, Mr. Rajiv? Yes. Okay. I just joined that LinkedIn group and I saw this invite. So I'm joining out of, if there's any way I can contribute, nothing in particular. Yeah. No, that's good. So in this particular session, right, our objective is to help students, Mhm. college going student undergraduates who is looking Okay. for a job, right, to help them Okay. to prepare for their interview, to Okay. prepare for their resume, Oh, very for nice. later. And then if somebody, let's say, wants to change in, has like finance or any accounting background and or any other background, and if they Uh-huh. want to switch into IT, specifically Okay. SAP side, we Okay. can try to help them. Oh, very good. My background, Mr. Rajiv, is in data science. Okay. So I do not know if I can be helpful on the functional part of it, but if there is interest, I can devise a small little 101 type of a course, just introduction wise, whatever works. I can spare about 2 hours on a weekly basis. Okay, that's good. So where do you work, Kanta? I work for Wex. It's a B2B SaaS company, Okay. and we enable payments, B2B payments. Oh, okay. So we are the largest fuel card in North America. Oh, okay. That's Yeah. great. So most of your fleet, Mm-hmm. or like Amazon, you have UPS, Home Depot, etc. Mm-hmm. They use our card, Oh, okay. our payment solution. Yeah. Wow, that's great. Yeah. So I for think we have. yeah, Mhm, my background, like in worked in most consulting companies, mhm. Bearing Point, Capgemini, Accenture. So my last Oh, company when. is Accenture. I Okay. left Very nice. Accenture last year in the same time, December, and Okay. then I started my own firm uh, Okay. for sustainability consulting. Oh, very nice. Yeah, Okay. so I help companies on achieving their net zero, Oh, so circular economy, right? Like for okay. few chemical companies has like mass balancing solutions, Okay. So what do carbon you capture. Mhm. yeah, what do you focus on within ESG? It's like a supply chain focus Right. or Yes, okay, embedding sustainability factor into their supply chain. supply chain. Okay, perfect. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Creating I had carbon footprint mhm. for product. Oh, very good. Yeah, yeah. It's a very important sector. I'm hoping that you're seeing good traction. Not in US right now, but I Yeah, given see the environment, right? in Europe, yeah, because of Yeah. the Trump, right? It's a more kind of Yeah. like political regions. But Mm-hmm. it is upcoming area. It will for sure. Like everybody, It all these does. companies Yeah. has already pledged, right, Yeah. to Yeah. achieve a 50% Yes. reduction in the GHG Yes. emissions by 2030. Yes. 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 2025 is gone, so in 4 years they have to achieve it, right? So Yes, yeah. I think there's an intersection between my field and I'm also um, I led a practice team for auto finance and mobility, mhm, and electric vehicles were a big part of our offering, especially on the how to fleet are like big polluters, right? mhm, So how do you in a sustainable manner transition your part of your fleet into EV so that it allows you to meet your pledge goals. mhm. So, but not from a very functionally deep perspective, but more from mobility and how companies like large fleet companies can think about that transition.
Yeah, no, no, Yeah. Mm. definitely. And then there is one more thing which I'm working right now is LCFS, low LCFS. carbon Okay. fuel standards, right? And Okay. RIN, Oh, right? So okay. if you are doing, if you are in, like, let's say, renewable energy sector, Okay. or let's say if you are manufacturing sugar, right? Okay. While making sugar, there is a byproduct called ethanol. Ah, yes. So if Yes. you generate ethanol, you can sell that ethanol to any fossil fuels company. They Yes. mix that with Yes. ethanol and then fossil Yes. fuels, and that is called LCFS, low Okay. carbon fuel standards. Okay. Okay. And That's then the one you, that is getting traction in India these days, right? We keep yes, hearing about it. Yes. Okay. yes, yes, yes. Okay. Okay. And I then have. there is more thing like in India, like everywhere, right? If you see, let me share my screen quickly. This is called CCUS, Okay. yeah, carbon capture, usage and storage, utilizations and Oh, storage. okay. Very nice. So if any company is doing that, then you can issue carbon credit. Oh, okay. Okay, and Okay. then that carbon credit, carbon pricing, and carbon trading. There's trading as well. Yeah, that's what I heard, right? There's Yeah, trading as well. Yeah. this CCUS will be a big thing Okay. for Yeah, very interesting. carbon Very trading. interesting Yeah. topic, right? Yeah. 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 So this CCUS is right. It will be super hot soon. It Mm. was there hot, like there was something called IRA 45Q, Mm-hmm. Inflation Reduction Act, which is Okay. right now stopped by Trump. Oh, okay. Okay. Okay, so all those companies, whoever was doing this CCUS, if you are capturing 1 ton, like for 1 ton, it was direct air capture of $185 per ton of Oh, credit, the tax wow. credit. Wow. So all those companies, BP, Oxy, they started like huge projects on CCUS. Okay. Okay. So is that there must be some counterpart on Europe of the same similar type of act, right? They are doing it right in Okay. Europe. They are doing a lot in Oh, big scale. yeah, yeah, yeah. I remember when I was in doing that practice role, Germany was big on it. I think UK was just starting. UK wasn't. UK was catching up. So I'm sure Europe is a very good market for you. Yeah, yeah, Europe. And then see, there is one more thing, like in the same thing for plastic packaging tax. That's Okay. another area. Right. Oh, Let me wow. see the screen. Wow. I would love to someday catch up with you. Yeah. So Uh, every Saturday, I have like 2 hours of training program on this okay. sustainability, and Okay. people join from globally. Like right Oh, now, and I have that is through this 15 people. Mithila thing, or is it just general? General, like entire, it's not Mithila thing, it's for uh, people from US, Germany, Oh, wow. UK, Ireland. So I have a batch right now for 15 people. I'll send you the invitation for next Yeah, Saturday. please do. Please do. uh, Yeah, I'll definitely try to join. so I'm helping, I'm trying to create The community army of around it. sustainability consulting. Yeah, community around it. Yes, yes, it's a Yeah, great thing to do. Yeah. it's for all like undergraduate students. I'm starting another batch in January for Okay. CCUS and then carbon trading. Okay. And then these Let things are me. all complementary. It's like for all students, I'm also providing them SAP access, Okay. getting their SAP certifications, assistance in getting SAP certifications. Okay. Let me just look you up, and I'll send you a request on LinkedIn. Yep. Yeah. Rajiv Jha, right? Yes. Yeah. And my name is Kanta Mishra. Yeah. Uh, And then if you search Saprin Consulting, that's the name of my firm. SAP Pring. Yeah, SAPREEN. So Saprin Okay. is basically SAP solutions plus green technology. I Oh, got an idea from ChatGPT to merge SAP and green. So it yeah. becomes That's Saprin. double E. Is that double E? Double E, yes. Okay. Yeah, I have you here. I'm just going to send you a request. Yeah. We know a couple of people. Oh, you know Avinash Jhaji. Yeah, yeah, yeah. Yeah. He was in New Jersey earlier. So Yeah, he's here in Dallas now. So yeah, I'm yeah, part yeah. of that Mithila Samaj here also. Yes, We yes, have yes, a yes. cultural group here in Dallas. Mhm. So Avinash ji is like very active. He's the one Yes. who Sutradhar types. Yeah, he added He's me the in one that who group. get, Yeah. yeah, he gets things done. Very, very good at it. Yep. When I was in New Jersey, we also had like Mithila group. I'm Ah, talking about like in 2005.
Yeah, I was in New Jersey too, but at that time, I had zero time, but I always wanted to um, have a connect back. So how does this session work? You will have students joining us? So nowadays, like we had a couple for last couple of weeks, we are not seeing many traction on this group. Hmm. We wait for students, but like mostly like professionals join here, Oh, okay. not Okay. like students. So we Oh, have okay. more volunteers than voluntary. So I see this Pankaj ji also on the Yes, meeting. yes, yes, Yeah, yeah, and yes. sorry, we just got on with No, our no, 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 no. our It's our very nice, chatter. very nice, Yeah. very nice. Sorry, I'm Kanta. I'll Yes, reintroduce myself. I'm based yes, out of yes. Dallas. Yeah. Very nice. So yes, we Yeah. live weekend like every Saturday and Sunday. Mm-hmm. So every Saturday with scientist Chaturana Malik sir Mm. regarding science subject. Okay. Yes, and those kids are studying right now as like in high school. They are Mm-hmm. participate. Yes. So main theme is our main theme is means before birth to till death our means maximum talented students left our birth country, right, for Yeah. bright Mm. education, for bright means bright future, Yeah. this that. So I Yeah. realize that yes, we know that in education system in government this that means our country is very big country in population also. Yeah. So I realize that this type of things regarding means today Sunday every Sunday we live regarding for graduate level students regarding interview Oh, very regarding nice. SAP this that. You know Very nice. everything There are, in a starting time we need to sometimes students right now in India it's, cold season is also going on. yeah, yeah, yeah. Or the Yeah, name, no, 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 absolutely, Pankaj ji. Where are you based out of? right now I am in Pune Pune? Oh, from okay. from Okay. Muzaffarpur Mujaffer. Okay. Motihari. I am Yes. okay. My background is from, like, my father was from Begusarai, Okay, and okay, my mom is from Madhubani. We speak Maithili at home. okay, Um, okay. yeah, but we have lived outside, like, I don't know for how many years now. So I'm just trying to, in whichever little way I can be part of anything I can do. Yes, yes, yes. Uh, Sure, yeah. sure. Try to join weekend. It's Mhm. really Yeah, very this good. time works perfect actually. I'll definitely want to be. How do you get students awareness among the students, Pankaj? How do we get students? Actually, I also went to Bihar during Chhat Puja, and Okay. I also talked with our additional secretary in Okay. Bihar, in Okay. government department, and they Okay. Okay. listened Okay. carefully, and they also received. They told me, please give me your application. So I will try my Okay. best to Okay. send to colleges. Yes. So Mm-hmm. right now it's in our, in our community or in our local means I like social media. Yes, so we are trying to reach Okay. Okay. I have. universities. Yes, yes, Yeah. Sorry. Please go ahead. I spoke over you. yes, yes, yes. No, no, no. Please. Yeah. Mm. So I was part of another group, and I made couple of contacts that might be helpful. They are on the ground, so Yes, yes. Sure, if sure. it's okay, yeah, maybe I'll just introduce you too, and then see if you can leverage their on ground presence. Um, Right. how long have you been doing this? From last 5 years. Oh wow! So Rajiv ji, 5 साल से. No, no, मैं no, Wow. 5 साल Rajiv. से नहीं कर रहा हूँ, पंकज जी ने स्टार्ट किया था। कितना लगभग 1.5 साल, 2 साल, 1.5 साल। Yes, Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. So, see, good things exist and we have to kind of chance upon those things, right? एब्सोल्युटली। Like this one, this exists. I had, I'd not, I wouldn't have known if I had not joined that group and if you had not sent that message today. I would have just been in the, I would have just been in the sleeper cell. नहीं।
So Manas sir also joined from last 2 3 years. He is also from CB Patti, near to Madhubani, 6 kilometers Okay. from Madhubani. Yes, Okay. 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 and scientist Satyana Malik sir village name is also same in CB Patti. It's also Madhubani Oh. district. Yes. Mm. My mom is my mom's village is Danga Haripur. Okay. Okay. Yeah, Right. and dad was not proper Begusarai. It's a little further. There's a place called Manjhaul. He was Okay. from there, Okay. and yeah, I try to speak Maithili as much as possible with people that I Yes. find Yes. here. Amanas sir will sure. He will also join. Uh, He join every Saturday Sunday. okay, You know. Yes. so Rajiv ji, I'm super impressed by your sector as well as how much time you're giving just in general dissemination of knowledge. So any way Yeah, I can help, you know this structure better. Any way I can help, just let me know. Anything is good. absolutely. I Yeah, will. I'm just ready to spend 2 hours every Sunday. Uh, if we can create a module or any help that you need, just think of me as a Absolutely. Yeah. partner in crime. Yeah. And then the next year I will also plan to develop a solutions connecting with SAP for carbon trading platform. Oh wow. Yeah. So Yeah. just like that's why I'm training folks, all those developers for AI, ML, right? Yeah. Into the field. I was maybe you are the right person to really bounce it off. Um, there is a Mithila Angel Network. Have you tracked them? No, no. So there's a person called Arvind Jha. Mhm. He is developing a Mithila stack, and within that stack, he's also developing a startup ecosystem in our region. Oh, okay. Yeah, He's very. from HCL, right? Arvind Jha. I think last was New Gen. I can send you his. Oh, okay. I can send you his profile. So he's not the same person like whom you were talking about. Actually, he also contacted me when I started. I do not know about Okay. HCL. Maybe he was with, but last when I got in touch with him, he was with Newgen, and now I think he's independently consulting, Oh, and okay. also doing this Mithila Stack. So he's got some good traction. Oh, I okay. don't know whether you know about this company called Roadbase. Do you know about Roadbase? No. It's a taxi services, something like Okay. Uber. Okay. That is, and they won Shark Tank funding as well. India Shark Tank funding. That's great. Yeah. Yeah. I'd love to Yeah, connect with him. Yeah. yeah. So I think, just this education, hot skills, employable skills, I think, triangulating all this will be super helpful. Yeah. Absolutely. Yeah. And also helping people to find jobs, right? Yeah. 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 This year I was Absolutely. with Accenture. Now in January I will get partnership with Accenture Oh, and very with nice. Bearing Point. Oh, very nice. Very Yeah, nice. Bearing Yeah. Point has multiple projects in Europe. Yeah. One of the ideas that, and again, I have not achieved anything. So just take everything with a big rock of salt. Mhm. These are all ideas. Another thing I was thinking about, that non-voice work, right? For example, RPAs, or Mhm. people have these websites, but QA on the websites. Mhm. Those things are employable, right? Those things, if you know basic English Mhm. and have basic RPA skills, one can develop a small group of people. Then from there, you can really uh, maybe build Yeah, it out. Yeah. no, absolutely. I will also tell my daughter to connect with you. She is doing data science and AI Oh, major very nice. Yeah. from Which year is she in? Carnegie Mellon. Which year is she in? She is a sophomore. Okay. Okay. Yeah. My daughter is a senior now. Okay. Yeah. She's doing data science and marketing. Oh, okay. Great. Yeah. She's also started like one startup in Carnegie Mellon Oh, for very nice. robotics. Yeah. Please do, Yeah. share my profile with her. I would Yes. love to speak with her. Yes. Yeah.
Hello, hey Rama. Hello, Prakash Prakash ji. ji. Yes. Prakash ji, please unmute. And Prakash ji, I just got your message in LinkedIn. So yes, Hello, hello. you are here now. Yes, sir. Just I'm coming from the Sri Salem. So just I check my LinkedIn. So just check your message. So Yeah, that's why. yeah. Yeah. So last year around the same time, I started Saprin Consulting. Hey Vishal ji. Hi, sir. Good evening. So did you get a chance to explore your extension of your business? Yes. Great. नहीं अच्छा है वो आप अपना जो आप उसको एक्सपेंड कीजिए और इट्स लाइक परफेक्ट टाइमिंग अभी क्रिसमस हॉलीडेज का ना Uh-huh. हाँ ये एक छुट्टियों का टाइम है आप कुछ तो उसमें नया कर सकते हैं ऑलरेडी और डूइंग इट मैन्युफैक्चरिंग थिंग राइट सो कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं आप हाँ, अभी प्लान तो वही है करने का हाँ चालू है नाइस अभी नाइस ऑर्डर दिया है छुट्टियों का टाइम है ना स्पेशली जो मैंने बताया ना आपको जो कैंडल का जो दिया टाइप का है इट्स रियली अक्रॉस हम्म, कहीं पे भी आप वो कर सक मतलब ऐसा कर सकते हो 2-3 उससे फ़ायदे हैं राइट? एक तो एनवायरनमेंट का भी है, ये लोग वेस्ट नहीं करें, लैंडफ़िल में ज़्यादा चीज़ जाए नहीं। इट्स लाइक इट्स इंस्टेंट लाइट। वो आपने बताया था वो है हमारे पास प्रोडक्ट पहले से ही। ओके, वही नाइस। सबसे ज्यादा वही चलता है हाँ, और हाँ। जो ग्रामीण भाग है रूरल एरिया में वो मेन मोमबत्ती कैंडल ज्यादा चलता है हाँ, हाँ। बड़ी वाली नहीं, यहाँ पे तो वही कैंडल का इट्स लाइक ए ह्यूज बिज़नेस यहाँ पे ना हम्म, जो एरोमेटिक ऐसा रहेगा कैंडल्स वो बहुत ज़्यादा चलता है। रूम हम्म, में घर में भी ना रूम फ्रेशनर की तरह लोग यूज़ करते हैं। हाँ आप उसमें एक चीज़ ये भी सोच सकते हो आप यदि ग्रामीण एरिया में यदि आप एक्सप्लोर करना चाहते हो कि ये सोचो कि वही उसमें ऐसा क्या किया जाए जिससे आपको मच्छर भगाने का भी काम में आ सके समथिंग ऐसा इट्स लाइक इट विल बी हाँ हाँ न्यू ट्रेंड सेटर होगा आपके लिए कि लाइट भी हो गया और मच्छर भी नहीं आया तो लोग मच्छर भी बाहर भी नहीं यूज आया कर सकते हैं समथिंग ऐसा तो उस पर रिसर्च कर ठीक सकते हैं इस पे। हाँ है ना कि उसमें लाइट डिनर दि- बाहर कर रहे हैं तो वहां पे ऐसा कुछ लाइट हाँ मतलब अच्छा वो एक स्मेल भी रहेगा तीनों काम हो जाता है हाँ क्या है जो मोम आते हैं हम उसमें कुछ मिक्स यस कर सकते हैं ऐसे या तरह से जैसे इंडिया में चलता था ना पहले कछुआ छाप इट्स लाइक सुपर हाँ, एक हाँ hazardous हाँ to हाँ health है वो नहीं एक अच्छा एक प्लांट है सिट्रोनेला। हाँ हाँ सॉरी मैं भूल गई, आप विशाल जी बोल रहे थे ना? हाँ 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 विशाल बोलिए ये बात विशाल जी से चलती है। मैं कांता डैलस में रहती हूँ। तो एक प्लांट है सिट्रोनेला, एंड मैं उसका अगर आपको चाहिए तो लिंक भी भेज दूंगी, which is supposed to be a very good repellent, mosquito repellent। तो यहाँ पे बहुत पॉपुलर है वो कैंडल्स में। आपको मालूम होगा राजीव जी, वो एक टिकी टॉर्च होता है ना, हम्म टिकी टॉर्च में भी वो यूज करते हैं। ओके And it is a known fact based thing, known for, like, it is people go and look for citronella based candles for uh, repelling mosquitoes। दैट्स ग्रेट या आप उनको लिंक भेज दीजिए क्या विशाल जी का अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है कैंडल्स का अच्छा तो जी, उनको ओके। बिजनेस एक्सपेंशंस के आइडियाज वो देख रहे थे कि कैसा और एक्सप्लोर किया जाए इट्स अच्छा, ऑलरेडी या
जी I'll send it रेवेन्यू ऑलरेडी है इनका, लेकिन उसको थोड़ा एक्सपेंड करने का, जी बाहर जाने के लिए। अभी तो महाराष्ट्र में है इनका, एक्सपेंड अच्छा ओके या नाइस मीटिंग यू विशाल जी। Yes, I'll send you thank you. अभी इसी ग्रुप चैट में मैं भेज देती हूँ उसका जो Yes, जो yes. प्लांट के बारे में, उसका एक्सट्रैक्ट मिलता होगा आई एम श्योर। Okay. हेलो, हे प्रदीप जी। संदीप जी, आप लोग म्यूट पे हैं। Actually, Vishal ji is living in Pune. He is doing job, but his business is in village area. You know, it's like family business. Yes, yes. That's great, Yeah. right? आप ये देखो ना कि आप So आप it's a very लोगों को really भी very आप nice to ladies job in village area. This is Yeah. really very good, very good. How can we increase ladies job in village area? This is also Mm, really very nice. और इसके लिए काफी गवर्नमेंट सपोर्ट भी है, तो उसको भी अवेल कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज, राइट? कि मोदी गवर्नमेंट पे भी है काफी सारी जो स्कीम्स हैं। mm, चलिए, मेरे भाई ने भी पुणे में स्टार्ट किया है। पहले तो उसका रियल एस्टेट का था, लेकिन अभी उसने फूड प्रोडक्ट्स, खास करके वो मधुबनी से मखाना लेके आता है यहाँ पे, और Okay. उसका एक बड़े लेवल पे स्टार्ट किया है। उसका ब्रांड नेम है आहार, तो पुणे में उसने स्टार्ट किया है। Very very nice. हिंजेवाड़ी एरिया में ही है, उसने अपना फैक्ट्री बनाया है कुछ, तो उसका कुछ 4-5 एकड़ में बनाया है, बड़े लेवल पे स्टार्ट किया। Pankaj ji, can I put in the chat here or does it have to Yes, yes. be No, yeah, no, or should I put it no, on the LinkedIn thing? no. Please send Okay, here I'm in chat. I'm just going to put it in call message chats, okay? Yes, yes. So this is just the basic information about what that plant does. And then I'm going to also, Vishalji, share some of the products that are selling here. वो भी भेजती हूँ मैं आपको. You might get some ideas that might be helpful. Okay. Rajesh sir, your any plan to come in India in next month? नहीं, अभी तो इस महीने का कुछ नहीं है। मेरा हो सकता है जून जुलाई के टाइम पे, Okay, क्योंकि अभी यहाँ पे ना अभी घर बनवा रहा हूँ यहाँ पे ह्यूस्टन में ही, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, ओके ओके। तो के लिए हम लोग ने मिथिला महोत्सव मिथिला हम लोग मिथिला महोत्सव प्लान है ना कर रहे थे, तो एंड जो भी बाहर के लोग हैं तो अगर आ रहे हैं तो इनको इनवाइट करने का प्लान कर रहे थे। तो सरस सर को, हाँ, तो सरस सर को इनवाइट ने किए हुए हैं, और अमरनाथ सर को भी इनवाइट किए हुए हैं। तो सरस सर को तो इनविटेशन जा चुका प्रोफेशनली, और अमरनाथ सर का नंबर मैंने उनको टेक्स्ट किया है, तो उनको भी कनेक्ट किया जा रहा है। फिर आप अगर इंटरेस्टेड है, कुछ नए थॉट के साथ में आ रहे हैं, कुछ हम लोगों मिथिल वासी को कुछ देना चाहते हैं, तो आइए, इनवाइट है जी जी जी। और लोगों को इनवाइट करना एक पॉजिटिव वे से। नाइस। तो दो चीजों को हम लोग कनेक्ट करना चाहते हैं, जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर करने के अंदर जो मैथिल लोग जो आगे आना चाहते हैं, उनको पास गाइडेंस नहीं है, तो आप जैसे लोगों को कनेक्ट कराना की तो चाह रहे हैं। तो उसमें बहुत सारे आईएएस लोग भी आ रहे हैं, हाँ, महिवाल जी है, और भी लोग हैं, और कैबिनेट मंत्रालय से अप्रोच किया जा रहा है। तो इसको पिछले साल भी अच्छे स्तर पे हुआ था, इस साल और ज्यादा बहुत अच्छे स्तर से। अब धीरे धीरे एक्सपीरियंस हम लोग कर रहे हैं ना, ये सब इवेंट है ना, इवेंट का इतना हम लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है, तो हाँ। कहाँ पे कर रहे हो प्रकाश जी ये इवेंट? उसको करने पुणे में होते हैं मैम। पुणे में, अच्छा, और पुणे के अंदर, और डेट इसका फिक्स्ड है? जी जी। 23 जैन, 24 जैन और 25 को विसर्जन हो जाएगा। तो 23 जैन को तो सरस्वती पूजा हो जाएगा, को मिथिला महोत्सव होगा, और 25 को हम लोग विसर्जन करेंगे। तो 3 दिन का रहेगा। उसके अंदर अगर किसी मैथिल का कुछ अपना प्रोडक्ट है जिसको लॉन्च करना चाहते हैं या उसको प्रमोट करना चाहते हैं, उन सब के लिए शॉप का व्यवस्था किया हुआ है।
तो उसका मीडिया जी और मीडिया के लिए दूसरे लोग, हमारे टीम के दूसरे लोग हैं, तो वो लोग देख रहे हैं उस चीज को। हाँ, जी तो जी सारा तो वेरी सारा नाइस आइडिया। जिनका जी जिनका कोचिंग है, कुछ कोचिंग प्रमोट करना चाहते हैं, किसी का बिजनेस है उसको प्रमोट करना चाहते हैं। जैसे राजीव सर ने बताया उनके भाई ने मखान के अंदर कुछ कर रहे हैं, तो लोगों को पता नहीं, बहुत सारे लोगों हम्म को नहीं पता। मैंने भी सर मैंने टेस्ट किया है उसका जो ये जो कुरकुरे वाला जो फ्लेवर है ना, उस टाइप का मैंने मखाना मैंने टेस्ट किया, बहुत अच्छा था फ्लेवर था। लेकिन ब्रांड में भूल चुका हूँ, मेरी कंपनी के अंदर मैंने देखा था डब्बे में पैक था वो, तो उसको हाँ निकाल के हाँ मैंने कहा मैं तो क्या है, जिसे मैं दरभंगा से ये मंगाता हूँ, हमारे कोई है रिलेटिव जो मखान फैक्ट्री में ही है, तो 700 केजी वो भेजते हैं और 6 रुपीज़ 60 रुपीज़ ट्रांसपोर्ट चार्ज लगता है, तो 760 रुपीज़ का मुझे मेरे घर में मखाना आ जाता है, अच्छा अच्छा क्वालिटी का। तो मैं वहाँ से मंगा लेता हूँ, तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करता हूँ, सीधा अपना घी में फ्राई किया खा लिया, नमक वमक नहीं डालता हूँ। हाँ लेकिन हाँ वो भी मैंने टेस्ट, हाँ जी, एक दिन मैंने टेस्ट किया था तो अच्छा फ्लेवर लगा मैंने कि ये भी प्रमोट हो सकता है चीज़ें, तो अच्छा था। विशाल जी, मैंने प्रोडक्ट भी डाल दिया है जो यहाँ पे amazon.com पे है। अगर जो जो कैंडल्स बिक रहे हैं यहाँ पे, आप प्राइसिंग भी देख सकते हैं उसके अंदर। ओके। चैट विंडो में है विशाल जी। यस। परफेक्ट। तो मखाना तो यहाँ पे, जी सॉरी जी जी सॉरी, जी बताइए बताइए बताइए। बताइए। नहीं नहीं, मैं तो ये बोल रही थी कि हम ही मार्केट है यहाँ पे, हमें भी बता दीजिए कहाँ से लेना चाहिए हाँ हाँ। मखाना। पिछली बार मैं इंडिया गई थी तो कतरनी चूड़ा लेके आई थी मैं। हाँ हाँ अच्छा। तो मतलब हाँ उसको, हाँ, तो उसको मैंने अलग डब्बे में बंद करके रखा हुआ है और रेगुलर चूड़ा को अलग डब्बे में बंद करके रखा हाँ हुआ है। तो जो पोहा हुआ जी बनता है तो कतरनी चूड़ा यूज नहीं होता है, उसको यूज नहीं करते हैं हम। जब पोहा हाँ बनता है तो नॉर्मल चूड़ा यूज करते हैं, वो कतरनी चूड़ा सिर्फ चूड़ा दही के लिए है। राइट। मामा जी को कॉल करिए सुना। ए जसवंत जी। ओम अनम्यूट प्रकाश जी। कीजिए आप, अनम्यूट कीजिए। ओम प्र- यू नो इन विलेज एरिया और मतलब मीन्स जो व्यक्ति लोग जो हैबिचुएटेड टाइप में नहीं रहते हैं ना कि ये ऑनलाइन पे बोलना भी है मतलब, तो ऐसे लोग जो ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन वो लोग सुनना ही केवल पसंद करते हैं समझ रहे हैं ना? चाहते नहीं है कि ऐसा एक टेलीविजन। मुझे कई लोगों का मैसेज ये आया था, राजू सर का जो प्रमोशन रहता है ना उसके अंदर बोलते कि डायरेक्ट जॉब लेने लगा सकते हैं क्या मैं कहता कि आप लोग चाहिए हम लोग रिज्यूम भेजे और राजू सर हम एसेंचर में लगा सकते हैं, तो उसके लिए आपको एबिलिटी हम लोग नहीं लग जाते ऐसे, अगर ऐसे में लगाते तो ऐसे ऐसे नहीं नहीं, होता अभी है, इंडिया में स्किल भी है। सस्टेनेबिलिटी के काफी जॉब्स ओपनिंग हो रहे हैं। हाँ, तो लेकिन अभी जो मैंने स्टार्ट किया है ना ओम प्रकाश जी, उसमें ज्यादातर लोग वो ज्वाइन कर रहे हैं जो ऑलरेडी एक्सेंचर एसएपी इन सब में ऑलरेडी हैं उसमें। ऑलरेडी एक्सपीरियंस है एसएपी वगैरह में हाँ, जिनका एसएपी का ऑलरेडी। एक्सपीरियंस है और उनको इस फील्ड में जाना है क्योंकि ये देखो ये अपकमिंग एरिया है और इसमें काफी अभी इवन बेन में भी काफी रिक्वायरमेंट है। राइट, बेन कंसल्टिंग या बीसीजी में भी है काफी, इनको इंडिया और खासकर इंडिया में लोग रिक्रूट कर रहे हैं, इट्स लाइक सुपर हाई पेइंग जॉब्स। तो उसमें क्या है ना कि उसमें जाना ही बहुत डिफिकल्ट है। राइट, कि बेन बीसीजी मैकेंजी ये सब में आप ये सोचो कि आईआईटी और आईएम से ही लोग लेते हैं। राइट, स्टार्टिंग में वहां से ही लेते हैं और उन्हीं को ही प्रमोट करते हैं, लेकिन अभी ये चूंकि ऐसा एरिया है जिसमें जो ज्यादा लोग हैं नहीं अभी, तो ऑलरेडी जो एसएपी में एक्सेंचर केपीएमजी ये सब में जो है उनको अपॉर्चुनिटीज है इसमें।
तो वो जो 15 लोगों का जो मैं बैच बनाया मैंने, तो उसमें वैसे ही उनको और ट्रेन करके, पॉलिश करके उनको सस्टेनेबिलिटी में ट्रेन कर रहा हूँ, राइट? उनका जो बिजनेस जो टर्मिनोलॉजी जो यूज करते हैं, स्कोप 1, स्कोप 1, 2, 3, उसकी पूरी डिटेल्स, तो उन लोगों को मैं टास्क देता हूँ, और जो उसमें से जिस दिन नहीं आए तो नेक्स्ट मीटिंग इनविटेशन उनको नहीं जाता है, क्योंकि वो पूरा फोकस्ड वो Rule, yes, rule is rule, yes. हाँ, क्योंकि आपने अटेंड नहीं किया तो आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम नो। तो नई नेक्स्ट वीक मेरा वो खत्म हो जाएगा, और उसके बाद देखते हैं, नया बैच स्टार्ट करेंगे फिर जनवरी में। और जनवरी में जो स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, उसमें यही है कि मेरा अंडर ग्रेजुएट को जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा, जो यूएस में है। Yes. यस यस कि यस यहाँ के वो लोगों तो को भी तो पता है अंडर मैंने, ग्रेजुएट को हाँ भी जॉब हाँ। चाहिए। यस यस सभी जगह है सर, क्राइसिस तो सब सभी जगह है, सभी सभी को जॉब रिक्वायरमेंट है। नहीं नहीं नहीं, दूसरा क्या है ना कि आप अलग अलग बैच जो बना रहे हो, तो उसमें ये है ना कि मेरा कि यहाँ पे इस टाइम पे, और उन लोगों को जो लोग इंटरेस्टेड है, तो उनका सबसे पहले रिज्यूमे लेके इंटरव्यू भी ले रहा हूँ, कभी ना कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ कोर्स किया है क्या अंडर ग्रेजुएट में। हम्म। तो सर वो सर रिलेटेड वही है ना, अगर एनवायरनमेंट को समझ रहे हैं आप उसके प्रति, तो उसी तभी आपका विजन आपका कंप्लीट है ना बन पाएगा कि राइट राइट, सस्टेनेबिलिटी रिक्वायरमेंट है। अभी बहुत लोगों को कार्बन फुटप्रिंट पता भी नहीं होगा, कार्बन कार्बन फुटप्रिंट क्या है। एब्सोल्युटली। तो वही होता है ना कि, और क्या होता है कि आप बैच में जा रहे हो, नहीं तो क्या नए लोग कभी कभी ज्वाइन किया कभी छोड़ दिया, तो क्या होता है कि आप, कि मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि हमने लास्ट टाइम उसको डिस्कस किया हुआ है। तो एक वो है। और अभी सर साइको ही बन गया है, स्वेपिंग का जो है ना, साइको है ना, मोबाइल के साथ में जो स्वेपिंग करते हैं ना, ये चीज पसंद है कि स्वेप कर दो आप, बहुत सारे ऑप्शन है। तो वो माइंडसेट है ना, तो हर एक जगह ही है वो, ये कोई किसी की बात सुनना ही नहीं चाहता। आप कुछ मतलब मेरे से कोई अगर क्वालिटी के बारे में पूछने का है, मैं उसको डीपली बैकग्राउंड तक मैं लेके के फिर समझा रहा हूँ कि तुमने जो क्वेश्चन जो इनपुट किया है वो तुम्हारा बना क्यों तुमको क्वेश्चन, वो तो बैकग्राउंड। वो कहता है ओके सर आई अंडरस्टैंड, ठीक है सर ठीक है सर। ठीक है मिल जाओ, तुम समझे नहीं जो भी समझाया तो नहीं समझ में पा रहा है, स्टेट का है, मतलब बिल्कुल क्विक क्विक डिसीजन कि मेरे को इतना ही पार्ट मुझे समझना है जिससे मेरा काम है ना निकल जाएगा, बाकी दूसरे का पार्ट है वो। तो एक ये साइको साइको है सबके, बहुत लोगों को देखते हाँ। नेक्स्ट ईयर अपना थोड़ा सा इसमें भी, इस पर्टिकुलर मीटिंग का भी थोड़ा चेंजेस करेंगे। इसमें क्या है ना कि अभी मैं भी थोड़ा लिंक्डइन पे डाल के अपना जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं, कि जो लोगों ने किया हुआ है, जिनको जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, राइट, या जिनको थोड़ा हेल्प की चाहिए। तो अभी हमने देखा ना कि अभी 2-3 लोगों का हमने ये किया, जो कॉलेज के थे, जैसे विभूति जी थे, आशीष जी थे, राइट। सो वो हमारा सक्सेस स्टोरी है, Right. राइट। तो थोड़ा सा क्योंकि पुश करने की जरूरत होती है, हम लोग एक कैटलिस्ट की तरह काम कर सकते हैं, राइट। बाकी का काम तो उनको ही जी जी करना है, जिनको जॉब देना है, रिज्यूमे बनाना है, इंटरव्यू तो उन्हीं को देना है। हम लोग थोड़ा पुश कर जी सकते हैं, उनको हेल्प हो सकता है। रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तो उनको ही है, चलना तो एग्जैक्टली, उनको ही या है, रास्ता कि थोड़ा गाइडलाइन की, हाँ कहाँ कैसे क्या थोड़ा सा। और वही होता है ना कि गाइडलाइन वहाँ पे जरूरत उसी चीज की है कि आप गाइडेंस करो, क्योंकि वो गाइडेंस हम लोगों को नहीं मिला था। एटलीस्ट जब मैं वहाँ पे था तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, जो वहाँ पे उपलब्ध नहीं था। तो Right. देखते हैं या और दूसरा सर कनेक्टिविटी कोई भी नहीं समझाता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ इसके ऑप्शंस और कहाँ 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 पे है, और इसकी कनेक्टिविटी कहाँ कहाँ पे हो सकती है। वो कनेक्टिविटी समझ में आ जाता है ना, तो फिर लगता है कि हाँ मुझे इस डायरेक्शन में ही मुझे चलना है और यहाँ तक मैं पहुँच पहुँच सकता हूँ। अभी किसी ने लॉजिस्टिक में वर्क किया है, लॉजिस्टिक में वर्क करके फिर बायर में आ गया है, फिर उसके बाद में प्लानिंग में चला गया है, फिर पीएमपी कोर्स कर लिया है, प्रोजेक्ट मैनेजर बन गया है, और अभी 15-20 साल के साथ में बाद में फिर बिजनेस मैनेजर जब बनाया। तो अब सोचिए सर उसको उसको रूट उसको कैसे करना था, और डायरेक्ट बायर में जाकर के बिजनेस मैनेजर है ना बन सकता था। अपना ग्रेजुएशन किया, उसके बाद में कोई एमबीए किया, और पीएमपी के अंदर पीएमपी कोर्स करके तुम प्रोजेक्ट मैनेजर, उसके बाद में फिर बिजनेस मैनेजर रहना हो सकते। एक रूट ये भी है।
तो वो बताने के पीएमपी लिए को भी हम मैं लोग कर सकते हैं प्रमोट, पीएमपी का भी ना जिनको करना है उनको कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, कैसे उसका प्रिपरेशन करना है। पीएमपी का हमारे भी कंपनी में बहुत अच्छा स्कोप है। अभी कोई डिबेग इंजीनियर है या फिर कोई किसको टेक्निकल स्किल अच्छा है तो पीएमपी कोर्स करके प्रोजेक्ट मैनेजर है ना बन सकता है, 1-2 साल के अंदर बिजनेस मैनेजर वो बन ही जाता है। तो लिए वो डील करता है, उसी को कॉस्टिंग को ही डील की तो करने के लिए बैठा हुआ है, तो वो बाद में बिजनेस मैनेजर बन सकता है। बिजनेस मैनेजर बन करके फिर आप कहीं भी जाओ, जापान जाओ और यूएस जाओ, यूरोपियन कंट्री में जाओ, तो हमारी कंपनी बहुत अच्छे से प्रमोट है करती है। और ये भी कि हमारी कंपनी जो स्किल है, आपके पास स्किल है, कुछ एबिलिटी है, रिक्वायरमेंट है, अपॉर्चुनिटी है, तो आपको मिलता है और आप बढ़ सकते हैं। थोड़ा स्ट्रगल रहता है, आप कोई दूसरे ने गेन कर लिया लेकिन हर बार नहीं होता है। एबिलिटी है तो वो गेन हो जाता है। नहीं तो वही है ना, पीएमपी एक है, बाकी का जैसा है ना कि पीएमपी को तो आपको काफी प्रिपरेशन और उसमें पैसे लगाने पड़ते हैं, ऑफकोर्स रिइम्बर्स हो जाता है, लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट आपका नॉट ओनली फॉर लाइक पीएमपी, जो एडेक्स के जो कोर्सेज हैं, राइट, जहाँ पे एमआईटी के हैं, एडिनबर्ग के हैं, हार्वर्ड के कोर्सेज हैं, इट्स ऑलमोस्ट फ्री, राइट, और सारे स्किल सेट्स के हैं। तो जिन लोगों ने नहीं किया है, एमबीए या कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड नहीं है, एआई एमएल का सर्टिफिकेशन करना है, तो एडेक्स बहुत अच्छा है उसके लिए, तो उसको प्रमोट कर सकते हैं एडेक्स का। और इट्स लाइक आपके रिज्यूमे में वैल्यू ऐड करता है, राइट, ये आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है कि जहाँ पे 10 रिज्यूमे हैं उसमें किसी के रिज्यूमे पे स्टैनफोर्ड, एमआईटी, हार्वर्ड ये सब का है कोर्सेज का, तो इट्स गुड, राइट, इट्स तो वो बेनिफिट है। ऑफ कोर्स पीएमपी तो है ही, पीएमपी के साथ एक और दो एआई और के भी। अंदर सर जो एआई है तो उसको अच्छे से प्रोमोट प्रॉम्प्ट देते हैं, तभी वो अपना है ना, मतलब जो हम चाहते हैं वैसा वो देता है। लेकिन क्या कुछ ऐसा भी मैं एडवांस कोर्स आया है क्या जहाँ पे मेरे प्रॉम्प्ट को वो खुद ही वो दे वहाँ पे? नहीं, उसको समझना पड़ेगा ना, नहीं मैं कोर्सेज की बात कर रहा हूँ, ऐसा पीएमपी का आपने बताया ना, तो वैसे ही एडेक्स का ना, हम्म उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से नहीं किया है हम्म इंजीनियरिंग, जी हाँ, तो उनके रिज्यूमे को अपडेट करने के लिए हम्म। थोड़ा, रिज्यूमे बेसिकली क्या पैकेजिंग करते हो आप, राइट, तो उसको कैसे आप, मैं इनफैक्ट अभी कल के क्लास में वही बता रहा था उनको, सबको एडेक्स का बोला है, सबको एमआईटी का सर्टिफिकेशन करने के लिए सस्टेनेबिलिटी में उनको जाना है, तो लाइक वैल्यू ऐड कुछ ना कुछ थोड़ा हाँ, सा क्योंकि आपके एडवांटेज, रिज्यूमे में है ना कि क्योंकि इट्स लाइक न्यू एरिया, एडवांटेज। राइट, अभी एक ग्रीन लेजर है या कार्बन ट्रेडिंग है, ये सब वेरी निश एरिया, बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम लोगों ने इसमें काम किया है, तो उसको आप यदि किसी और बैकग्राउंड से, तो आप स्टोरी कैसे बनाओगे, कुछ तो जी सर चाहिए होगा वही। ना, तो आपको यस एजुकेशन सर, का। ये सर वही तो हेल्प हेल्प करेगा कि सस्टेनेबिलिटी भी आप जा रहे हो तो इधर से आपके पास में कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन कोर्सेज है तो बोले कहाँ इंटरेस्ट है इसको। करेक्ट, जैसे आपके कॉलेज में, राइट, आपके कॉलेज से ज्यादातर लोग अभी रिन्यूएबल एनर्जी में गए हैं, अदानी के प्रोजेक्ट्स पे ज्यादातर लोग जो राजस्थान में जैसलमेर वगैरह में जो कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये कोर्स बहुत अच्छा है। एडेक्स में ना यदि जाएंगे आप, स्लो, इसमें जो सस्टेनेबल एनर्जी का है कोर्स, काफी सारे कोर्सेज हैं इसमें, लेकिन सस्टेनेबिलिटी में एक जो एनर्जी है वो बहुत अच्छा है, सस्टेनेबल एनर्जी, ये वाला कोर्स बहुत अच्छा है। तो इसके वीडियोज वगैरह देख सकते हैं, कोई भी फ्री से फ्री है, वेरीफाइड सर्टिफिकेशन के लिए थोड़े पैसे लगते हैं, हम्म लेकिन हाँ, ये भी वही है कि आप जो जिन लोगों ने किया है डिप्लोमा आपके यहाँ पे इंस्टीट्यूशन से, उन लोगों ने थोड़ा ये करके समझ लिया, स्टोरी थोड़ा बना लिया, प्रोजेक्ट दिखा दिया, ऑलरेडी कर रहे हैं लोग रेन्यूएबल एनर्जी पे, तो ये सब वैल्यू एडेड होता है रिज्यूमे के लिए, राइट, और समझ के आप थोड़ा स्टोरी ऐसा बनाओ, स्क्रिप्टिंग करो,
तो इसमें हेल्प होता है। और ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, एआई के भी हैं, स्टैनफोर्ड के भी हैं, ऐसे कोर्सेज हैं जो ऑलमोस्ट फ्री है। राजू सर, ये ऐसे वीडियो बना सकते हैं तो कौन से प्लेटफॉर्म में यूज कर सकते हैं एआई के लिए? नहीं समझा, फिर से एडिटिंग, बोलिए आप। ये वीडियो है एक कौन सा भी, उसको हाँ एडिट हाँ, करना है और एआई से एडिट करना है, तो इसके लिए कौन सा मैंने प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं? मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है उसका वीडियो का ना। नहीं क्या? मेरा ज़्यादातर तो चैट, मतलब इसमें को पायलट का ही यूज़ करता हूँ मैं। हाँ, ये इसका सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी लेके रखा है, पावर पॉइंट और कुछ आर्टिकल्स उसमें थोड़ा सा एडिट करने के लिए होंगे। मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है उसको। ओके। चैट जीपीटी से ही क्वेश्चन पूछ दीजिए। नहीं, मैंने मुझे लगा आपने कुछ यूज किया है तो मैं देख सकता हूँ अभी लाइव। नहीं, वीडियो को अपडेट करने का नहीं किया है मैंने। नहीं क्या? ओके। वो एक अलग डिपार्टमेंट आ जाते हैं। या इंडिया में कितना चल रहा है ना अभी एक दूसरे को, या पॉलिटिकली। हाँ कैसे? लोगों ने धुरंधर मूवी देखी कि नहीं? हाँ, देखना। हमने सर सुनी है, अच्छी है। सर देखी नहीं है। अरे जाके देख लीजिए। मैं तो मूवी को प्रमोट करने के लिए 2-3 बार और देखने वाला हूँ। अच्छा। हाँ हाँ, एक दो हमारे पड़ोसी सब नहीं, देख के आ मुस्लिम गए हैं, कंट्री तो लोग लेकिन वो विरोध लोग कर भी रहे जा हैं। रहे मुस्लिम कंट्री लोग हैं। हाँ, विरोध कर रहे हैं, विरोध लेकिन कर। उनका विरोध से कुछ नहीं, उनको लोग छुप छुप के देख रहे हैं। हाँ। वो पायरेट मूवी इन्हें देख रहे हैं, तभी तो विरोध कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स पे भी ये मूवी आ जाएगी, अभी 130 करोड़ का ऑलरेडी डील हो गया है। अच्छा खासा रेवेन्यू इंडिया के अंदर हुआ है इसका। दिल्ली का 27 करोड़ का है इसका रेवेन्यू। आज 50 करोड़ के ऊपर गया है, आज सिर्फ यस, हो सकता था। 330 करोड़ हो चुका है इंडिया का इसका जो कलेक्शन। जो चिकन्ना वाला जो गाना है, हर कोई अपने स्टेटस में कितने लगा रहे हैं। तो, तो मेरा एक मित्र है, उसने स्टेटस में लगाया है, तो मैंने माशाल्लाह बहुत खूब दिखती है तुम। तो विशाल जी, ऐसे लोग वही लोग यूज कर रहे हैं वीडियो को एआई से जनरेट करके। हाँ, हाँ, वही वही तो। देखता। तो एआई का जब आपने वीडियो का पूछा ना, तो ये आप देखिए सोशल मीडिया पे लोग वही यूज कर रहे हैं, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग। हाँ हाँ हाँ, अभी वही चालू है। अभी नरेंद्र मोदी का लगाते हैं उस गाने पे, अमित शाह का लगाते हैं, अलग अलग हाँ प्रकार के। हाँ विशाल, तुमको और हमको नहीं पता, लेकिन गांव के लोग है ना, एडिटिंग है ना कर रहे हैं उसी के थ्रू। जो हाँ यूट्यूबर है, जो गांव गांव वाले हैं, उनको इतना स्किल नहीं है, फिर भी वो लोग बहुत अच्छे से ये सब वीडियो एडिटिंग तो उसमें माहिर है वो लोग। वो हाँ बोला ना, एनर्जी कहीं और यूज कर रहे हैं लोग। यस सर। जो गांव के टेक्नोलॉजी, ऑपरेटर दिमाग, सब कुछ है ना कहीं और। जो गांव के ऑपरेटर आते हैं ना, तो बोलते सर मिस्टेकली मेरे से एंटर हो गया। मैंने कहा व्हाट्सएप में तो नहीं होता तुमको एंटर, व्हाट्सएप में प्रॉपर फोटो वोटो एडिट करके तुम लोग है ना डालते हो। हाँ, इंस्टा पे फोटो अपडेट करते हो, यहाँ क्या दिक्कत है? वही तो वही चीज है ना। आज तो मुझे लगता नहीं कि और कोई अभी ज्वाइन करने वाले हैं। हाँ नहीं सर, सर ये मैम का इंट्रोडक्शन हुआ, मैं बीच में आया था। इंट्रोडक्शन उन्होंने अच्छे वो काफी टाइम लोग, आप हाँ, लेट तीन चार बार दे ज्वाइन। दिए। सॉरी सॉरी, हम थे ना डिले हो गए थे, क्योंकि हम वहां से आए थे ना, इसलिए हम मित्र इधर उधर प्रसादी देने के लिए चले गए थे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, कोई बात इन्होंने। नहीं है। मैं जी फिर मैम। से दे देती हूँ। हाँ। जी मैम। सो मेरा नाम कांता मिश्रा है और मैं डैलस में रहती हूँ, टेक्सास स्टेट। राजीव जी भी उसी स्टेट में रहते हैं, अलग सिटी है उनकी। और मेरा बैकग्राउंड बैंकिंग में है, अबाउट 26 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। और फंक्शनल लेवल पे, मतलब यहाँ पे जो हेल्पफुल होगा हमारे इनिशिएटिव के लिए, वो होगा डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंटिस्ट। दैट वो वही मेरा ट्रेनिंग है, वो मेरा रोल रहा है। जी और मैं आई हैव कम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मैं वही राजीव जी से बोल रही थी कि मुझे 2 घंटे मैं दे सकती हूँ संडेज को, और जैसे भी जो भी यूजफुलनेस होगी, वट एवर कॉन्ट्रीब्यूशन आई कैन मेक। दैट्स द दिस इज इंट्रोडक्शन।
करीब ओके 10 साल से हूँ मैं यहाँ पे। और फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से मेरे फादर एयरफोर्स में थे, तो हम अधिकतर बाहर ही रहे हैं। लेकिन अगर मिथिला रीजन के बारे में बोलेंगे तो मेरी मम्मी मधुबनी से हैं, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हैं, और मेरे पापा बेगूसराय से थे। मैं 4 लैंग्वेजेस बोल सकती हूँ। मैथिली फ्लुएंटली बोल सकती हूँ, कन्नड़ा फ्लुएंटली बोल सकती हूँ। हम कर्नाटका में मैं मतलब स्कूलिंग 10वीं क्लास से कर्नाटका में ही रहे हैं हम लोग। इंग्लिश हिंदी ऑफ कोर्स मैं बोल सकती, थोड़ी बहुत स्पेनिश बोल सकती हूँ, बट मतलब Wow. फ्लुएंसी नहीं कह सकते उसके बारे में। ओके, ग्रेट ग्रेट। मधुबनी में कहाँ है आपका ननिहाल आपका? ढंगा हरिपुर, क्या बोले? ढंगा 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 हरिपुर। ढंगा हरिपुर। अच्छा अच्छा, गंगा हरिपुर। आ, मेरी मम्मी के अनुसार वो शायद लास्ट गांव है बिहार का, टुवर्ड्स बिहार नियर रक्सौल। नेपाल के बॉर्डर। बिहार हाँ, नेपाल बिहार के के पास। बॉर्डर, हाँ अच्छा नेपाल के पास, हाँ हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। एक्चुअली हाँ पहले मिथिला एक ही था ना, डिवाइड हो गया ना अंग्रेज के टाइम में ही ना, कि बहुत सारे हाँ मिथिला हाँ। के लोग तो यहाँ नेपाल यहाँ में यहाँ हैं। पे यहाँ बहुत सारे हमारा जो मिथिला समाज है उसमें नेपाली मैथिल्स भी हैं। जी तो जी मैं हमारे तो मतलब वो, और वो डॉक्टर अच्छी मैथिली बोलते हैं, अच्छी मैथिली बोलते हैं। डॉक्टर लोकेन्द्र ठाकुर जी भी कभी कोई ज्वाइन करते हैं, तो वो भी मतलब हम्म। नेपाल से ही है, मतलब नेपाल से अच्छा, ही यहाँ है। पे बहुत बड़ी हाँ, तो कभी पॉपुलेशन है कभी हम डायरस लोग, में। जी हम कभी कभी, कभी कभी हम तो लोगों को उसमें बोलते हैं, हम उसमें लोग जो किसी का दरभंगा के रहने वाला, कसूर नहीं है। अपना देश आजाद नहीं होता जो उस टाइम में दरभंगा वाले सोचते हैं, डिवाइड। दरभंगा वाले दरभंगा वाले सोचते हैं कि हम लोग ज्यादा मैथिली शुद्ध बोलते हैं, मधुबनी वाले अलग सोचते हैं, और नेपाल वाले सोचते हैं कि हम ही शुद्ध बोलते हैं। मुझे लगता है नेपाल वाले ज्यादा शुद्ध है, बोलते होंगे, मुझे क्योंकि लगता उनका है कि इस पे जन चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, मुझे मुझे वो सब लगता है कि परिहास के। अगर आप, हाँ मुझे लगता है कि कोई भी अगर कोई भी नई भाषा या अपनी ही भाषा बोलने की कोशिश भी कर रहा है ना, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। नहीं क्योंकि मैम, ये भी बात है, जो जो माइग्रेट मैथिल है उसको 3 या 4 5 भाषा तो आती आती है। हाँ संस्कृत हाँ, उसको आई बिल्कुल ही, जाता है स्कूलिंग में। हाँ, जहाँ बिल्कुल पे लोकल बिल्कुल में है, बिल्कुल चाहे महाराष्ट्र में है या फिर राजस्थान में बिल्कुल है या फिर कहीं भी, वहाँ का लैंग्वेज आता है, हिंदी इंग्लिश आई जाता है। बिल्कुल और, बिल्कुल और बिल्कुल। अगर और फॉरेन मुझे में, लगता, हाँ जी हाँ आप फॉरेन में गए तो जापान में गए या जर्मनी में गए या फिर इटली में, जहाँ कहीं है तो वहाँ की भाषा आ जाती है। तो इससे क्या है, एक माइंड का कुछ तो केमिकली है जो हम लोगों को है ना अप्रोच लेवल है ना बिल्कुल बढ़ा देता है। हम बिल्कुल लोगों को बिल्कुल। अप्रोच लेवल बढ़ा सकते हैं कि कैसे जुगाड़ करके आगे है ना कि तो जाना है। हाँ हमें बिल्कुल बिल्कुल। हमें और मेरे को लगता है अब कि उसमें जब मैं, सॉरी आई एम स्पीकिंग ओवर यू, आप अपना अपनी बात खत्म करें। जी जी जी, तो हम लोगों की नजर सुपरवाइजर पे हमेशा रहती है, अपने न बॉस पे, कि वो क्या कर रहे हैं और हमको करना क्या है। फोकस्ड फोकस्ड, हाँ। फोकस होती है वो मेरे को करके। हाँ, मुझे जी लगता है कि जैसे मैंने जब कन्नड़ा सीखनी शुरू की ना, तो मैं मतलब आई वाज एन एडल्ट। बहुत मुश्किल होती है एक एडल्ट लेवल पे भाषा सीखना, बट और उनकी प्रोनाउंसिएशन वगैरह भी बहुत ही अलग होती है, जो हमारी इंडिक लैंग्वेजेस हैं उनसे बहुत अलग होती है, द्रविड़न लैंग्वेजेस की प्रोनाउंसिएशन। बट मुझे जो उसका साइड बेनिफिट लगा ना प्रकाश जी, कि आप इतने एक बड़े ऑर्गेनिक लेवल से उस कल्चर को समझ पाते हैं जब वो भाषा बोल सकते हैं आप, जो कि आपको कभी नहीं समझ में आएगा अगर आप वो भाषा जी। नहीं बोल पा रहे हैं। नहीं मैम, ये तो मैं महाराष्ट्र में जब आया था तो विशाल भी ये साथ में ही है, ये भी महाराष्ट्र के हैं। बट मेरे को लगा था कि नहीं, मुझे 1 1.5 साल में भाग जाना है यहाँ से, मैं दिल्ली चला जाऊंगा, मुझे भाषा समझ नहीं आती है। हर कोई है ना पकड़ के थप्पड़ है ना मार देता है, किसी को यहाँ पे कुछ लोग समझते नहीं है। हाँ हाँ लेकिन जब हाँ, ये लोग, अभी मैं जब इनके नियर बाई गया ना, बहुत अच्छे बहुत भोले लोग हैं, बहुत ही समझदार लोग हैं, और इनका कल्चर भी बहुत अच्छा है। नियर बाई कल्चर मतलब नेचुरल के, बिल्कुल नेचर के अकॉर्डिंग ये लोग है ना अपना अपना जीवन यापन हाँ करते हैं। हाँ बिल्कुल ज्यादा हाँ। अपना दिखावा नहीं, ग्लैमर नहीं इनके लाइफ में। हाँ, तो वो सब हम्म। चीज बहुत अच्छी चीज अब समझ में आता और है, तो फ्रेंडशिप हुआ है जी। और हम ही लोगों के यहाँ की कहावत है ना, जैसा देश वैसा भेष, है ना कहावत अपने यहाँ पे। तो वो तो आपको थोड़ा रखना ही चाहिए, और वो इट ऑल्सो इज रिस्पेक्टफुल। अब हम लोग मैथिल हैं, हमारे लैंग्वेज को और हमारे कल्चर को अगर वो नहीं मिलेगा तो हमें भी लगेगा, राइट? इट्स वेरी नेचुरल। तो जी जी उस जी जी। वो स्पेस हमें हमेशा दूसरों के लिए भी रखनी ही चाहिए, आप, तो राइट? जैसे जैसे कि आप बोले ना, हमको उस चीज में घुसने के बाद में फिर कहना चाहिए कि अच्छा है बुरा है।
हम क्या दूर हाँ से ही जी, बिल्कुल। ऑब्जर्व करके हम अपना माइंडसेट बना लेते हैं ना, तो वो हाँ। चीज है गलत है। और सोचिए ना कि इसका सबसे बड़ा विक्टिम कौन है? हम बिहारी ही सबसे बड़े विक्टिम हैं इसके। आप अगर जी सच जी। में हम लोगों के हाँ पास जाके हमारे स्टेट से बात करेंगे और समझेंगे, तो ये जो अननेसेसरी ब्रांडिंग हो चुकी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लेकिन लोगों ने एक बना दिया है ना, एक ब्रांड बना दिया है, क्योंकि उनको समझना नहीं है। जी 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 जी। तो वो पहले समझने में मेहनत, उस कल्चर हाँ, समझने में मेहनत लगती है, समझने में समझ लगती है, समझने उस में कल्चर थोड़ा-सा अपने विचार को थोड़ा कर्टेल करके रखना पड़ता है। वो लोगों के पास उस पेशेंस कल्चर नहीं है ना आजकल। उस कल्चर के नजदीक जाना है। तो अभी साउथ में देखते हैं तो कांता एक मूवी आया था, वो कैसे डांस हाँ, करते हाँ। हैं, हम लोगों को मतलब वो डांस वाला भद्दा लगता है, लेकिन जब उनकी जो थॉट है, जो उस मूवी के अंदर देखा ना, उसकी थॉट और उसका हुँ, प्रति लोगों का ट्रस्ट, वहाँ के लोकल लोगों का ट्रस्ट, हाँ ये हमारे देवता बन के आए अभी, अभी ये जो हुँ। बोलेगा बिल्कुल सच बोलेगा, तो वो चीज को जो महसूस करने लग जाएंगे ना, तब चीजें उनकी भी चीजों को फीलिंग करना फिर स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, और ये देखिए, मेरे को अब लगने लग गया, जैसे मेरी बेटी है। मेरी बेटी यहाँ पे पली-बड़ी है, और मैं अगर उसको एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि उसको सब कुछ ही आ जाएगा, तो वो गलत होगा, है ना? लेकिन उसको इतना तो समझ में होना चाहिए कि मेरा एक कल्चर है, उस कल्चर के कुछ आव-भाव हैं और उसके प्रति एक सम्मान, तो और जो कम से कम बेसिक लैंग्वेजेज़ हैं, उसको थोड़ा समझ में आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हर एक चीज़ को, nobody has to be an expert in anything to appreciate it, है ना? तो आप अपना दिमाग खुला रखें। हम अपना दिमाग खुला रखेंगे तो हर एक चीज़ सुंदर लगेगी। पेड़ यहाँ पे भी उतना ही सुंदर लगता है जितना आम का गाछी बिहार में लगता है। जी जी जी, तो बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ही लोग हैं, वैसे ही लोग हाँ भी हैं। अगर आप हाँ। सच में समझने लग जाएँ तो सारे लोग सुंदर हैं। जी जी। और मैंने मुझे भी चीज हमेशा हाँ, जैसे आप नहीं, बोलिए। आप कुछ आप कुछ बनने की कोशिश करते ना, तो आप जो बन रहे हैं वो भी है ना, लोगों को पता है कि आप नेचुरल में क्या है और कहाँ पे आप है ना लोगों को दिखा रहे हैं, लोगों को पता रहता है। इसलिए है ना, मैंने तो वो चीज को मतलब 10 साल से छोड़ दिया कि मुझे कभी कभी किसी को बन के नहीं दिखाना, मैं जैसा हूँ वैसा ही। और लोग हुँ। एक्सेप्ट भी करते हैं, लोग मतलब रिस्पेक्ट भी देते हैं ये सब चीज को। जी, जी, जी। नहीं, मैं बिल्कुल हाँ मानती हूँ इस बात को। मैं इंडिया में भी हाँ। काम कर चुकी हूँ, यहाँ पे भी काम कर चुकी हूँ। आइडेंटिटी को वेपनाइज़ नहीं करना चाहिए। जी राजीव सर, आइडेंटि हम लोग मैथिली मैथिली ब्राह्मण में धोती कुर्ता हम लोगों का है, लेकिन मैं ऐसे सार्वजनिक जगह पे पहनने में थोड़ा सा चकुचाता हूँ। लेकिन जब मैंने आपका रामायण का वो वाला पार्ट जब देखा, मैंने कहा राजेश और जैसे बड़े लोग भी वहां जाके वो मतलब दिखा रहे हैं, लोग क्या सोच रहे कौन हैं सा बिल्कुल। नहीं रामायण पता। का पार्ट देख लिया जी आपने मेरा? यार, वो था ना, अब रामायण वो आप जो करे थे ना आप, लक्ष्मण जो बना था। लक्ष्मण जो भरे थे, हाँ। तो ओह, अच्छा, ओके। आपने जी रामलीला सर, की थी? ओह, वेरी जी नाइस, यहाँ वेरी पे हम नाइस। लोग तो का मैं बहुत बड़ा ग्रुप है बाना का, बिहार एसोसिएशन ऑफ हाँ, नॉर्थ हाँ, इंडिया। यहाँ वहाँ पे भी था, न्यू जर्सी में भी था बाना का हाँ, एक न्यू जर्सी चैप्टर। में भी, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, नहीं, अच्छा करते हैं। एक्चुअली आप यहाँ देखेंगे ना प्रकाश जी, जैसे मैं हाँ हूँ, तो एक छोटा-सा हमारा ग्रुप है, हम हर एक ट्यूसडे को हाँ हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हाँ हाँ हाँ। और नहीं, हर एक फ्राइडे। एक खुद में ही एक ओरा है ना, बना लेते हैं कि मैं सीनियर पर्सन हूँ, मैं डांस में करूंगा तो लोगों का क्या इंप्रेशन जाएगा। लोग कुछ ही नहीं सोचते हैं, लोग कुछ नहीं सोचते हैं, लोग जस्ट एंजॉयमेंट करते हैं, उनको देना चाहिए एंजॉयमेंट। आप अपने खुद में आनंद करो, लोग भी आनंदित है। तो बिल्कुल। राजेश सर से ये मुझे मिला, मैंने कि चलो जीवन नहीं, को बहुत अब है ना अच्छा, स्वतंत्र रूप से बहुत, जीना बहुत है। अच्छा, हाँ, स्वतंत्र रूप बहुत से अच्छा, जीना है। अब बहुत विशाल अच्छा। विशाल इनको भी पता है कि ज्यादा मैं नहीं रहता, जैसे रहता हूँ वैसे रहता है, तो ये लोग भी पता है इन लोगों को भी, तो ठीक जी। लगता है अभी। हाँ, अच्छा लगता बहुत इस अच्छा साल लगा का आप मेरा था लोगों से स्टैंड अप मिलके। कॉमेडी। हाँ, सॉरी, सॉरी, सॉरी ये राजीव अभी जी। हम लोग का कल्चरल फेस्ट था नवंबर में, थैंक्स गिविंग के एक वीक पहले। अच्छा, हाँ, तो इस बार हम लोग उसमें डांस रहता है, ड्रामा। इस बार अच्छा। मेरा तो उसमें स्टैंड अप कॉमेडी किया था, और उसके पहले वाले में था चाणक्य। अरे वाह! चाणक्य का रोल किया था। ओह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। या तो नो, उसमें आई एम क्या है सु कि पहले से प्रैक्टिस करते हैं, 2 महीने से आप डांस का प्रैक्टिस करें, क्योंकि डांस वांस तो कभी इंडिया में किया नहीं, यहाँ पे प्रैक्टिस करना। नहीं, नहीं, वो प्रैक्टिस ही करना एक्चुअली प्रोसेस है जो कि एन्जॉयबल है ना, तो बड़ी अच्छी बिल्कुल, बात है। हाँ, हाँ। एक्चुअली काफ़ी आई हैव फन टू होते हैं गो, ना। या आई हैव टू गो नाउ, यप। बट बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। और हाँ, राजीव जी, इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू थिंक, और आप में से कोई यस, अगर कहते हो कि एक स्ट्रक्चर में अगर कहेंगे कुछ काम करने के लिए, तो बिल्कुल। आई विल बी वेरी विलिंग टू या पार्टिसिपेट। या और मैं अपनी है। डॉटर थैंक को यू बोलता मैडम। हूँ आपसे कनेक्ट करने के लिए। जी, जी, थैंक यू उसके सो घर मच, का वेरी स्कूल नाइस। उसी पे ही है। जी, जी, वेरी नाइस मीटिंग ऑल ऑफ यू, टेक केयर।
या Yeah. मैम बाय। इंडिया में सपोर्ट है ना, दे सकते हैं क्या? इंडिया में बोले तो बच्चों को केवल गाइड करना है, एक दो बच्चे हैं जिनको डाटा साइंस किया है, बस केवल लॉजिक एक, बस वो आधे घंटे का, बाकी तो उनको अपना ही प्रिपरेशन। जी 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 वैसे जी लोगों जी को बिल्कुल। सैटरडे को प्रकाश जी, पंकज सर, हाँ हाँ सैटरडे को बोलिए, वैसे बच्चे लोग है ना हाँ 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 ज्वाइन करेंगे सैटरडे को थोड़ा मिनट के लिए, वो या संडे को करेंगे फर्स्ट टाइम में 5-10 मिनट के लिए, तो वहीं पे वो सिखा देंगे। मैं सैटरडे को हम अगले लोग फ्री संडे रहते हैं। जी मैं अगले संडे ज्वाइन करूंगी, और मतलब अगर वो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं तो वहीं पे कर सकते हैं, नहीं तो अगर सेपरेटली आप कह रहे हैं तो वो भी सोच सकते हैं। बट आई थिंक एक स्ट्रक्चर है तो अच्छा है कि ना, एक बिल्कुल। एक चैनल है, एक राइट स्ट्रक्चर है, राइट। और देन दैट्स द राइट प्लेस टू कम। बट आई एम ओपन टू व्हाटएवर वर्क्स फॉर एवरीवन। जी हाँ जी प्रकाश जी जी मैम, सही रहेगा। जी जी यही है सही, सैटरडे वाला ही सही रहेगा, क्योंकि बच्चों को पता लगे कि डेटा साइंस सुन रहे हैं लेकिन है क्या है, और हमको कैसे जी इसके अंदर अपना कैरियर है ना बना सकते हैं, अगर इसमें जी जाना जी चाहे तो। जी 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 जी। मुझे थोड़ा सा, अगर कोई ज्वाइन कर रहा है तो थोड़ा सा उनके बारे में लिंक्डइन पे या कहीं पे बता दीजिएगा कि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो फिर मैं जी उस हिसाब से उसको एड्रेस करूंगी। अगर जैसे सीनियर लोग हैं, थोड़ा कर चुके हैं, उनके लिए अलग तरह से बात कर सकते हैं। अगर एकदम बच्चे हैं, हाई स्कूल में हैं, तो उनके लिए अलग तरीके से बोलना पड़ेगा। तो वो मुझे थोड़ा सा इंडिकेशन दे दीजिएगा कि किस जी जी बैकग्राउंड से हैं बच्चे, फिर मैं डेफिनेटली मतलब दैट जैसे हम बी लोग अ के गुड सैटरडे के यूजफुल। सेशन रहते हैं, सैटरडे के जो सेशन रहते हैं वो हाई स्कूल के बच्चे लोग ही रहते हैं, 8 अच्छा, 9 सैटरडे का सेशन शायद मेरे को मुश्किल होगा, ये सेशन शायद, बट इट्स ओके, संडे आई कैन शिफ्ट संडे। वन डे, जो भी आपको ठीक लगे। अगर सैटरडे को हाँ करना है हाँ तो फिर मैं सैटरडे को शिफ्ट कर लूंगी अपना टाइम। बता दीजिएगा मुझे बस। पंकज जी, ठीक संडे के ही की तो रखते हैं, संडे मैम ठीक। भी हाँ हाँ एलेक्टेबल है, हाँ और ऐसे बच्चे भी लोग यहाँ भी पे फ्री अभी रहेंगे उस time। ठीक ठीक ठीक, संडे ही सही रहेगा। संडे को ये हाँ स्टार्टिंग में बच्चे लोगों के लिए रिगार्डिंग हाँ हाँ स्टार्टिंग में हाँ मतलब हाँ। 10 राजीव मिनट सर भी रहेंगे, तो राजीव सर का भी हाँ हाँ उसके अंदर फाइंड, तो राजीव सर भी फाइंड आउट करके हम लोगों को हमारी लैंग्वेज में समझा सकते हैं। तो हम लोग समझा सकते हैं स्टैंड अप हाँ। कॉमिक कॉमिक कर सकते हैं मेरे कंटेंट पे राजीव जी। जो मैं सीरियसली बोलूंगी वो राजीव जी एक एकदम पंच लाइन में समझा देंगे। जी जी मुझे जाना है अभी, थैंक यू सो ठीक है, मच, ओके ओके चलिए, बट मैम, थैंक आई यू, विल ओके मैं जॉइन मैम, ज्वाइन नेक्स्ट करूंगा। वीक। ओके, या थैंक यू, ठीक थैंक ओके यू, ओके बाय बाय ओके मैम, ओके बाय। अच्छा है अपना मतलब सब्जेक्ट सब धीरे धीरे पढ़ते तो जाएंगे। राजीव जी बोले स्टूडेंट का पता नहीं क्या प्रकाश जी, ये ट्रेनर लोग ही ज्यादा है लेकिन स्टूडेंट हाँ, लोग अभी ढूंढना पड़ रहा है। वही लोग बच्चे लोग आते हैं, हाँ, देखते हैं, उनके समझ का नहीं होता है तो वो लोग क्यूट करके इनके जाते हैं, या फिर अभी बोलने के विश्वास लिए नहीं जो बोलते हैं करेंगे ना, कुछ बोल दिए। विशाल जी, अभी हम पूना में हाँ डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन से मिले हुए हैं। अभी पंकज सर आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज कुछ नहीं तो प्रकाश जी आपका प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ अभी सही है। नहीं ना, हाँ हाँ हमने हटा दिया है, हमारा हेडफोन सब कुछ हटा दिया है, और बस मोबाइल मोड पे है। हम सोचे कि हेडफोन का आवाज आ रहा होगा, तो हटा दिया है। हाँ बोलिए चलिए बोलिए पंकज सर बोलिए। अभी अभी तक हाँ ठीक हुआ है। यहाँ भी मतलब चाह रहे हैं कि मतलब थोड़ा सा यूनिवर्सिटी वगैरह में भी बच्चे लोग के पास कहेंगे, जहाँ यहाँ कैसा है संडे का जो सेशन है ये मैक्सिमम तो कॉलेज जो बच्चे लोग को जॉब चाहिए, हाँ तो हम लोग को पहुंचना थोड़ा सा भी मतलब अभी तक रास्ते में ही है, मतलब जगह तक प्रोसेस में है। देखिए सब होना चाहिए पॉजिटिव। नहीं, क्या होता है ना कि लोग तो काफ़ी आ सकते हैं, मैं एक लिंक्डइन पोस्ट डालूंगा तो हो जाएंगे, काफ़ी लोग आ जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा ना कि वो हमारे टारगेट नहीं होंगे। हमारे जो टारगेट स्टूडेंट्स हैं जो अंडर प्रिविलेज है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, राइट, जी जी वैसे लोगों को लेके मतलब 50 लोगों को लेके आ गया, एक ग्रुप बना दिया जो ऑलरेडी उनका एस्टेब्लिश्ड है, राइट, करियर में, तो करेक्ट सर, फिर करेक्ट तो सर। फिर मतलब नहीं होगा। हम्म 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 हम्म। क्योंकि हम लोग उन को लोगों का दिख रहा है शिक्षा, गाँव उन के लोग, या जिनको जॉब एग्जैक्टली लाइक विभूति जी, परफेक्ट एग्जांपल। यस यस, अभी हमको तो लगता वैसे है कैंडिडेट मिलते हैं ना। उस टाइम कॉलेज में गए थे ना, वहाँ पर जो मिले ना,
तो हमको मेरे अंदर में लग रहा है कि जैसे मेल किए हैं उनको अभी तक साला बात है कि इन लोग का भी डिपार्टमेंटल भी रहता है ना, कुछ कह नहीं सकते हैं कि जैसे हेड ऑफिस में मिले हैं वो बोले हम आगे इसको अब क्योंकि आपको देखिए समझ रहे वहाँ पे जैसा जो इंजीनियर्स हैं, राइट, लाइक भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, मुजफ्फरपुर का कॉलेज है, इन सब कॉलेज के स्टूडेंट्स वो लोग हमारे लिए आइडियल कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग करने के बाद में उनको जॉब नहीं मिलने वाले, वो क्या गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचते रहेंगे, क्योंकि एक गैप है कि कॉर्पोरेट को क्या चाहिए। किसी भी ऐसा इंडिया में विप्रो, इन्फोसिस या एक्सेंचर, कैपजेमिनी, पीडब्ल्यूसी, उनको जो चाहिए और जो इन्होंने पढ़ाई की है इंजीनियरिंग में, वहां पे एक गैप है। उस गैप को तो वो लोग नहीं लेंगे इन लोगों को, तो उस गैप को हम लोग फुल फिल करने का प्रयास कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश करके उनको कॉर्पोरेट लेवल का जो रिक्वायरमेंट है वहां पे लेके जा सकते हैं, तो उनको जॉब मिलने में आसानी होगी। हमारा वो है टारगेट, ये नहीं कि ऑलरेडी जो एस्टैब्लिश्ड है, आज एक्सेंचर में उनको मैकेंजी में जाना है, बेन में जाना है, वो तो फिर क्या होना कि फिर वो डिस्कनेक्ट हो जाता है पर्सनल लेवल एजुकेशन पे। कहो ना, एजुकेशन और एक्सपीरियंस के बीच में ब्रिज का काम करना है। करेक्ट, करेक्ट, एजुकेशन और जॉब के बीच, एब्सोल्युटली। अभी ठीक है, जब तक हमारे स्टूडेंट्स नहीं मिलते हैं हाँ। तब तक हम लोग विशाल जी का बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। विशाल जी आप तैयार हाँ रहिए। चलिए। हाँ हम लोग अपना हाँ फोकस आपको बिजनेस का आगे बढ़ाने में लगाएंगे। ये ओके ओके चलेगा। ठीक है, वो गांव का है इसलिए हम चाह रहे थे कि गांव का है तो एक गांव से दो, दो से चार उसको बढ़ा सकते हैं उस टाइप में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए विशाल जी, कंट्रोलिंग पावर में तो ऐसा नहीं है कि कंट्रोलिंग पावर मतलब क्या होता है कि आप मटेरियल ले रहे हैं, मटेरियल बन रहा है कहीं और सेल हो रहा है, कैसे कहाँ क्या, दोनों चीज होता है। एक होता है कि नहीं अरे हमारा तो एक वो भी होता है, दूसरा होता है कि चलो भाई एक गांव के जगह पर और 100 गांव में अगर कोई ऐसा हो रहा है और 100 गांव के घर में फैमिली में लोग कुछ कमा रहे हैं, तो एक करेक्ट। प्रश्न हाँ तो हुआ कि आपका तो लॉस कुछ नहीं है एक तरह से देखा जाए तो, समझ रहे हैं विशाल जी। हाँ हाँ अगर थोड़ा उस बात तो हाँ प्रॉफिट ही होंगे कि कुछ ना कुछ हाँ कुछ भी होगा, हेड ऑफिस रहता है। हाँ या कुछ एब्सोल्युटली। कहा कि मैक्सिमम देखते हैं, जैसे सपोज कि राजीव जी का ये एसेंचर में जॉब करते थे, आज के डेट में एसेंचर से बाहर कंपनी ओपन की है, फिर आज के डेट में बिजनेस भी करना स्टार्ट किए कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री में तो ऐसा नहीं हुआ हाँ ना कि एसेंचर में काम किए या किसी कंपनी में काम किए तो वो चीज नहीं है। तो सेम चीज है कि विशाल जी अगर हम लोग थोड़ा लेवल में सोचना चाहेंगे कि हाँ इसको कैसे हम लोग आगे बढ़ाए, आगे कैसे बढ़े, जरूर है कि- ओके ओके मैं बताऊंगा कैसे क्या प्लान करना है। नहीं नहीं वो डायरेक्टली बोले कि ब्रांच ही खोलना है क्या, पहले तो आप अपना खुद पहले बड़ा करते जाइए कि गांव में जैसे आज या 10 हाँ लेडी काम कर रही है तो उसको 50 लेडीज कैसे पहुंचे, वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे वो चीज मेन वही होता है ना कि आपका प्रोडक्शन सेल सेल को कैसे हम बढ़ाएं, बराबर ना राजीव जी। बराबर है। सेल बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक पीछे की चीज ऑटोमेटिक बराबर होते जाएंगे कि हाँ रॉ मटेरियल कैसे कितना बढ़ाना है और कितना हैंड कितने और बढ़ाना है। के लिए जैसे बताते हैं प्रोडक्ट, जैसे अभी जो प्रोडक्ट चल रहे हैं जो आपका नॉर्मल जो नेचुरली जो चल रहे हैं उसमें कुछ हाँ ऐसा चीज ऐड कर सकते हैं क्या कि डायरेक्ट में तो हो सकता है पुणे मुंबई में उसका डिमांड हो, गांव में भले ना डिमांड है, राइट राजीव। तो बिल्कुल उस चीज बिल्कुल। थोड़ा सा एरिया चेंज कर देते हैं तो प्रोडक्ट का मतलब मार्केट में है, प्रेजेंट है। जैसे आज जो मैम भेज वो अमेजन पे एक बार देखिए, आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ा चीज है। या हाँ वो वो सामान चाहिए वो गांव में बन रहा है कि सिटी में बन रहा है उससे कोई बहस नहीं है। बिल्कुल। इस चीज को मतलब अवेलेबल रहना चाहिए। आपका जो प्रोडक्ट है वो उस लेवल पे लाए, उस टाइप के लेवल जो चीज है वो चीज कैसे कहाँ है, थोड़ा और उसमें मतलब बढ़ते या बढ़ाए कैसे बराबर। ओके ओके ठीक है, चलिए फिर आज का ड्रॉप करते हैं। ठीक है ओके ओके ओके, चलिए फिर बाय। गुड नाइट।